हेलो एवरीवन, वेलकम टू विमेन एंड वेल्थ। आई होप आपकी काफ़ी सारी लर्निंग हो रही है, यू आर डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, एंड अबव ऑल आई होप you guys are taking action to take that next step, action to do something which you have never done, action to think in a new direction that you have never thought about. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही important topic पे, which is something that will come to your mind immediately as soon as आप framework implement करने की बात करोगे. Framework समझना एक चीज है, but when you set to implement the framework, जब भी कोई भी चीज नहीं सीखते हैं, we begin with a lot of excitement of course, but the real test of progress happens when you learn something new and you start implementing that new thing. You start living the new knowledge. And then it all comes down in terms of loss of confidence. कि मैंने ये बढ़िया चीज सीख तो ली, मुझे समझ में भी आ गई. I am ready to apply it and change my life, to take my finances and wealth to the next level. लेकिन मैं कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं? तो आज के सेशन में हम कॉन्फिडेंस पे बात करते हैं. हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या है. सबसे पहले समझते हैं what is confidence, because कॉन्फिडेंस को हमने इतना, of course it's a very cliche term, no wonder, but the thing is a lot of times we forget कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है. क्या कॉन्फिडेंस जन्म से ही लोगों के पास होता है? जिसके पास नहीं है वो क्या वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता है? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि कॉन्फिडेंस की फीलिंग क्या होती है व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ just as who you are, without not bothering what people will talk about you or think about you. That's confidence. When you're willing and ready to express your desires and work towards your dreams, to pursue your dreams, irrespective of whatever people think around you, irrespective of whatever impediments may come your way. That's confidence. तो ये सब होता है confidence. तो सबसे पहले ये बात समझ ले कि confidence is a skill. बहुत सारी बार लोग आके कहते हैं कि अपने आप में बिलीव करो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है. That is all philosophical stuff. Philosophy हम सबके समझ में आती है, लेकिन वो philosophy को अप्लाई कैसे करें? That has to be some kind of good amount of research, and it has to be something practical. Skill building is practical because skill building is not dependent upon how your life was, how your past was. Skill building की बात करते हैं तो हम current present की बात करते हैं कि मुझे स्किल चाहिए कॉन्फिडेंस की, मैं ये स्किल बिल्ड करूंगी मेरे में कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी. दैट्स द स्किल. सो कॉन्फिडेंस इज अ स्किल. That's the first thing to remember. And the second thing to remember is that the skill building is extremely simple. All that you have to do is to have repeated actions again and again and again. You go about it. सबसे पहले आपने कोई चीज़ सीखी होगी. For example, cycling, the simplest of things. We all learn how to cycle when we were very young kids और young adults. तभी हमने जब भी शुरू की होगी साइकिलिंग सीखना, तभी बिगिनिंग में day 1, day 2, day 3 someone would come and ask you how confident you are. तो आप क्या बताते थे? I'm not confident at all. I'm learning, right? And now if I ask you, you go to parks, you have cycling races. If I ask you how confident you are to cycle, you would say, of course I'm very confident, because वो repeated actions जो आपने करी थी, that has helped you get the confidence. The second most important thing to remember about confidence is your willingness to try. You were willing to try the skill of cycling, and that's how you are confident about it. तो सबसे पहले चीज है कि it's a skill and it's a very simple skill. Second is it's all about your willingness to try. That's all confidence is all about. इसमें से पता चलता है confidence कोई magical, mystical चीज नहीं है कि किसी में है, किसी में नहीं है. जन्म से किसी में आई है तो वो पैदाइशी confident है तो वही confident रहेगा, और मेरे में तो नहीं थी तो मैं नहीं confident रहूंगी. ऐसा कुछ नहीं है. It's a learnable skill. तो एक बार before we go about how to build more confidence, एक बार कॉन्फिडेंस के डेफिनेशन को समझ लेते हैं. द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इज अ बिलीफ एंड अ फीलिंग दैट थिंग्स विल टर्न आउट well. Things will turn out perfectly well because you're worthy, you're willing and you're capable. आप worthy हो, आप willing हो, willingness to try, आप willing हो कि try कर सकते हो कुछ भी, और आप capable हो, आपकी competence है, आप में वो skill है कि आप try कर सकते हो, right? So confidence is just that. और इसको अगर break किया जाए तो सबसे पहले तो confidence is a belief and a feeling. This one you can relate with. जब भी आपको confident feel होता है तभी आपको बॉडी में कैसा सेंसेशन फील होता है. सो कॉन्फिडेंस इज अबाउट द थॉट दैट आई एम कॉन्फिडेंट, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट द सेंसेशन दैट यू फील इन योर बॉडी अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट. When you're confident, you walk in a different manner. Your shoulders are much more straighter, broader, and erect, and then every step shows that you are confident. You can clearly make out, दो बंदे चल रहे हैं, एक confident ही चल रहा है, एक deconfident चल रहा है. You can make out the difference. So it's a sensation in the body.
ये सेंसेशन हमारी बॉडी में हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी फीलिंग जनरेट कर सकते हैं हमारी बॉडी में, वैसे भी सेंसेशन जनरेट कर सकते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट योर बॉडी नीड्स टू हैव दिस सेंसेशन, यू कैन जनरेट इट. पावर प्लांट का एग्जांपल देंगे तो एक पावर प्लांट जो होता है विंडमिल, it doesn't have energy, it generates energy. So we can generate this confident feeling into our body. So that's the first part of definition. So the second part of confidence says that things will turn out well because I'm willing, I'm worthy and I'm capable. मतलब आपको कॉन्फिडेंट हो कि सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि आप सबसे पहले तो विलिंग हो. यू आर विलिंग टू ट्राई आउट इवन दो यू फेल, यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. रिमेंबर द साइकिलिंग एग्जांपल. आप ऑफ कोर्स बहुत बार गिरे होगे, इम्बैलेंस आया होगा, आपकी स्पीड काफ़ी स्लो रही होगी, बट जस्ट बिकॉज यू आर विलिंग टू ट्राई आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया अपने आप में. और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्दी. काफ़ी सारी बार हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज वी डोंट फील वी आर वर्दी इनफ, स्पेशली विथ मनी कॉन्वर्सेशंस एंड वुमेन. हम जब बोलते हैं कि हमें लॉट ऑफ टाइम्स वी फील दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टॉकिंग अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज वी फील कि हम वर्दी नहीं है, हमारी ये डिवाइन राइट नहीं है, वी आर नॉट गुड इनफ एंड वी आर नॉट वर्दी. बट वेन यू शिफ्ट दैट फीलिंग दैट आई एम वर्दी, मतलब आई डिजर्व अ सीट एट द टेबल फुल ऑफ men to talk about money, that whole thing shifts a confidence game for us. And the last part is I'm capable. Capable means I have the skills, I have the abilities, I have the talents and I have the knowledge to really talk about money. I am worthy and I'm capable and I have the competence to do that. तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है तभी it makes it completes the definition of confidence. It's a belief and a feeling that everything will be fine because I'm willing, worthy and capable. This also means कि जब भी there are those days when you don't feel confident. There are those conversations where you can't be a part of क्योंकि आपको confident नहीं लग रहा है. तो ये definition को देखिए और ये 3 words के बारे में सोचिए. क्या आप willing हो try करने के लिए? क्या आपको लगता है कि आप worthy हो? और क्या आपको लगता है कि आप capable हो? Right? This is all about how to have confidence and how to understand whether you're lacking confidence. So अभी देखते हैं कि हमारा confidence जाता क्यों है और हम उसे कैसे वापस ला सकते हैं. There are 2 main reasons why we lose our confidence in life, and these are exactly the 2 things जो हम वापस लेके अपनी लाइफ में तो confidence वापस आ जाएगा. And these are the 2 extremely important things, guys. और when we talk about these 2 reasons, you think about your confidence in life and कौन से areas में आपको de-confident feel हो रहा है. और ये 2 चीज़ें आप apply करेंगे, आप instantly पहचान पाएंगे कि maybe this is the reason why I was not confident and this is how I get my confidence back. And especially again, we'll revisit these areas with respect to our money conversations, right? Wealth conversations. So सबसे पहला reason है why we lose confidence is when we lose control over something. सोचिए एक बार फिर से, जो चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल है वो चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो, और जहाँ पे आपका कंट्रोल गुम हो जाता है, कम हो जाता है, खो जाता है, वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट भी घुमा देते हो. जैसे कि साइकिलिंग के एग्जांपल में ऑफ कोर्स इट वर्क्स. और वन मोर एग्जांपल, सपोज यू आर नॉट फीलिंग वेल और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने डायग्नोस किया आपको और बोला कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज़ है जिसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ेगी. हाउ डू यू फील? You feel that you have lost control over your body, right? There's something happening in your body which is not right, but which you're not able to control. You don't know what to eat right, how to do it right, so that you start feeling okay, you have to take the help of the doctor. तो ये जो loss of control है आपके ऊपर का confidence गुमाने के लिए, it's responsible that you lose your confidence in yourself because you have lost control over it. और अगर simple का example opposite side पे देखा जाए तो simple सी चीज़ जो आप रोज करते हो, आप कितने confident हो क्योंकि आपका पूरा control है. Suppose अपनी shoe की laces बांधना, you are very confident about it, right? आप आंख बंद करके भी बांध सकते हो. I'll ask you why can you do that? You'll say I'm very confident. Why are you confident? Because in total control over your actions, over your movements, right? So जिस चीज में control है उस चीज में confidence है. This leads us to the next question कि हमें अपने आप से पूछना है कि मेरे हर एक एरिया में मेरा कितना कंट्रोल है. मेरी टीम के ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है, मेरी मैरिज के ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है, मेरे फाइनेंसिस के ऊपर, मेरे नए गोल के ऊपर जो हमने कल गोल और ड्रीम्स बनाए उसके ऊपर मेरा कितना कंट्रोल है. इन सब चीज़ों को देखिए, टटोलिए और फिर सोचिए कि इनमें से मेरा कंट्रोल जिसमें नहीं है वो क्यों नहीं है और हाउ कैन आई गेट द कंट्रोल बैक. कंट्रोल नहीं है दैट मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं है. इफ यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर मैरिज दैट मीन्स यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर मैरिज.
And to bring the confidence back, you'll have to bring the control back. अगर कंट्रोल घुमा देते हैं तो we start feeling terrorized, we start feeling stress, बहुत stress आ जाती है, and that's the reason why we get depressed. बहुत सारे जन, you must have heard a lot of cases recently कि depression is an increasing disease, mental disease. इसीलिए mental wellness और health की इतनी बातें हो रही है, because a lot of people getting into depression mode. Why do you get into depression? Because you start losing control over something that matters to you in your life, that's important to you in your life, right? So I want you to ask this question to yourself. What is the level of control that I feel in important areas of my life? My health, my wealth, my finances, my career, my job, my kids, my family, my spirituality. कितना कंट्रोल है मेरा उस पे? और फिर आपको पता चलेगा कि जहाँ पे कम कंट्रोल है वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी कम है. So instead of rather than working on a confidence and then struggling how do I get it back, let's try to get the control back so that the confidence comes back as well. तो अभी reason number 2 पे जाते हैं. Why do we lose confidence? The second reason for that is loss of competence, capability. आपकी काबिलियत वो जितनी कम होती है उतना ही आपका कॉन्फिडेंस कम होता है. आपकी काबिलियत कम है साइकिल चलाने में तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस भी कम होगी, राइट? एंड it's nothing, again, यहाँ पे it's all about the willingness to try. Do you even know that when you were a child and when you were learning to walk, you fell about 17 times average in 1 hour? तो क्या आपने उस पे काम करना छोड़ दिया? आप काम करते हैं, राइट? आप 17 बार, आप 1 घंटे में 17 बार गिरे. इमेजिन आप 7-8 घंटे अगर जाग रहे थे, आप कितनी बार गिरे होते. लेकिन एवरी टाइम यू गॉट अप एंड यू स्टार्टेड ट्राइंग अगेन, राइट? यू वर विलिंग टू ट्राई. तो आपकी जो कैपेबिलिटी थी, कैपेबिलिटी टू वॉक, आपने वो कैपेबिलिटी के ऊपर काम किया. दैट्स हाउ यू गॉट कॉन्फिडेंट. द सेम इज विद साइकिलिंग, सेम इज एनी स्किल दैट यू स्टार्ट टू मास्टर, राइट? स्टार्ट टू गेट कैपेबल ऑन. जब भी आप कैपेबिलिटी की जर्नी शुरू करते हो कोई भी नए स्किल में, आप 4 फेज से गुजरते हो. सबसे पहला फेज होता है इंफॉर्मेशन, डेटा. मतलब सबसे पहला तो आपको जानना है कि कैसे होता है. वो डेटा जो आपके सामने आता है वो आप समझते हो कि ऐसे ऐसे चीज होती है, आप समझ लेते हो कि कैसे करना है. सेकंड होती है कि उस डेटा में से आपके काम की क्या इंफॉर्मेशन है आप छांट के निकालते हो कि इतना सारा डेटा है, उसमें से मेरे काम का क्या है मैं दिखाता हूँ, मैं निकाल लेती हूँ उसमें से, which is going to help me build my capability. That's the second part. That leads to the third part, which is called your knowledge. वो डेटा वो इंफॉर्मेशन जब भी नॉलेज में बदल जाती है, जब भी आपको समझ आने लगती है to a level where you can start applying it, that's called the third level. And that leads you to the fourth level, which is called wisdom. जो आप एक्चुअली अप्लाई करते हो, राइट? अप्लाइड नॉलेज इज विजडम. तो वो विजडम में तभी बदलती है जब आप उसे अप्लाई करते हो. ये चारों फेज से गुजर के, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, इससे गुजर के आप पहुंचते हो कैपेबिलिटी पे. आप कैपेबल हो जाते हो कोई भी चीज में. सो इन दीज फेजेस, टू गो थ्रू दीज फेजेस एंड टू रीच द विजडम लेवल, और उसके बाद वाला भी लेवल व्हिच इज कॉल्ड द मैस्टरी लेवल, जहां पे आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हो कि ये स्किल तो मैं अच्छे से कर पाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू लर्न टू मैनेज योर मनी. फर्स्ट कम्स ऑल द डेटा, उसमें से आप इंफॉर्मेशन निकालोगे, उसमें से आप ये सारा करके लास्ट में विजडम से एक्सपर्ट लेवल तक जब भी लेके जाओगे तभी आपको लगेगा नाउ यू आर फुल्ली कैपेबल. और यूजुअली टू रीच मैस्ट्री लेवल, एक्सपर्ट्स बताते हैं, देयर इज अ रिसर्च विच सेज के इधर 10,000 आवर्स तक उसके बारे में स्टडी कीजिए या तो 10 साल तक स्टडी कीजिए, विच एवर इज बेस्ट दैट हेल्प्स यू टेक दैट. सो डू यू हैव 10,000 आवर्स और डू यू हैव टू पुट 10 years to study that, or else you can even take the help of someone who has done that and be with that person for a year or 2 and get to that level of expertise. The choice is yours, but the thing is कि आप जितना आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाओगे, जितना आपका कॉम्पिटेंस बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और इसी साइकोलॉजी में इसको लूप कहते हैं, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस लूप. द हायर योर कॉम्पिटेंस, मतलब आपकी कैपेबिलिटी, आपकी काबिलियत जितनी हाई होती है उतना ही हाई आपका कॉन्फिडेंस होता है. और इन द रिवर्स, आपका कॉन्फिडेंस जितना बढ़ता जाता है उतना आपको मन करता है मैं ज़्यादा काम करूँ, वैसे आपकी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस भी बढ़ते जाती है. सो दे आर ऑल कनेक्टेड. आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, अपनी काबिलियत बढ़ाइए, अपनी स्किल्स और नॉलेज पे काम कीजिए. और अगर ये सब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ऑल दीज लीडर्स जो हमें लीड करते हैं, लर्नर पीपल जिन्हें बहुत सारा ज्ञान होता है, हाउ डू दे गेट कॉन्फिडेंट? द वे दे स्पीक, उनके कॉन्फिडेंस पे ही आपको अच्छा लगता है एंड आप उन पे भरोसा कर बैठते हो बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट. उनका कॉन्फिडेंस आपको अच्छा लगता है. यू फील दैट दिस गाय कैन बी रिलाइड अपॉन बिकॉज दे हैव वेरी हाई कॉम्पिटेंस, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट? और आप जो भी स्किल बिल्डिंग करोगे आपको इन सब फेज से गुजरना ही होगा. यू हैव टू गो थ्रू दीज फेजेस. कॉन्फिडेंस बढ़ाना है,
कंपीटेंस लो रह के आप कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकते. You know, बढ़िया एग्जाम्पल दैट आई थिंक ऑफ व्हेन आई थिंक अबाउट दिस कॉन्फिडेंस एंड कंपीटेंस इज व्हेन आई स्टार्टेड टू स्पीक हाउ टू लर्न. एज अ पर्सन आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, और जब भी मैं आई वाज इनटू माय अर्लियर करियर, आई वाज इनटू कॉर्पोरेट लॉ, तभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करने की. तो ये स्किल पे मैंने कभी काम ही नहीं किया था कि मैं रूम फुल ऑफ लोगों से कैसे बात करूं. रूम फुल तो भूल जाइए, 5 जन से बात करने के लिए भी आई वाज टू शाय एंड वेरी इंट्रोवर्ट. व्हेन आई स्टार्टेड स्प्रेडिंग माय मैसेज, तभी मुझे पता चला कि अनलेस एंड अंटिल आई लर्न टू स्पीक, तो मैं मेरा मैसेज कैसे पहुंचाऊंगी लोगों तक. आई हैड टू लर्न हाउ टू स्पीक. एंड इफ यू सी माय जर्नी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, starting from where I was, these are my earlier days when I was speaking, to all the training that I took to increase my capability and my competence, कि मैं कैसे effectively बोल पाऊँ और मेरा मैसेज कैसे डिलीवर कर पाऊँ. तो ये मेरा प्रेजेंट सिनेरियो है जहाँ पे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर ऑफ पीपल दैट यू आस्क मी टू स्पीक, बिकॉज मैंने वो कॉम्पिटेंस पे काम किया है. ये सेम वापस एक बार मुझे दोहराना पड़ा वेयर आई हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा. कैमरा से बात करने को नहीं होती थी, बहुत ही नर्वस फील होता था बिकॉज आदत नहीं थी. कैमरा से कैसे कोई बात करेगा, लेंस से कैसे कोई बात करेगा, राइट. देन अगेन वहाँ पे वापस व्हेन हैड टू गो ऑनलाइन, वो एक दूसरी कॉम्पिटेंस थी जहाँ पे मैंने काम किया, वो मेरी काबिलियत पे काम किया. एंड देन नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल. यू ओपन द लेंस एंड कैन स्टार्ट टॉकिंग इजीली. तो ये सब जो होती है, इट इज नॉट, वी आर नॉट बिल्ट विद दिस. काम करने से होता है और काम करना पड़ता है. बट द गुड न्यूज इज दैट हो जाता है. इट्स एक्सट्रीमली ईजी. और इफ आई कैन डू इट, इफ यू नो द पर्सन, माई फ्रेंड्स आर रियली समटाइम्स सरप्राइज्ड कि हाउ कम यू आर सो कॉन्फिडेंट टॉकिंग टू सो मेनी पीपल एट वन गो, टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव वर्कड ऑन. तो आप भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अभी यू आर नॉट केपेबल टू टॉक अबाउट मनी. में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उस पर काम नहीं किया है. एक बार काम कर लिया, एक बार आपने मनी गेम सीख ली, समझ ली, अप्लाई करने लगे, तो धीरे धीरे आपका वहां पे भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए. सो आई वांट यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, व्हाट इज माय लर्निंग प्लान राइट नाउ. ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे मुझे बहुत कम कॉन्फिडेंट फील होता है, और ये एरियाज में मेरा लर्निंग प्लान क्या है. हाउ डू आई इंक्रीज माई केपेबिलिटी इन दिस एरिया सो दैट आई इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस. पैसे की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे. इफ दैट इज योर लर्निंग एरिया, यू नो व्हाट टू डू, यू नो हाउ टू गेट स्टार्टेड इनटू लर्निंग. लर्न सिंपल वेज टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट एंड लर्न सिंपल वेज टू सेव मनी सो दैट यू गेट योर कॉन्फिडेंस इन दैट एरिया. और ऐसे कौन से एरियाज है जहां पे आपको कम कॉन्फिडेंस फील होता है, कम कॉन्फिडेंट फील होता है. इज इट योर रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप कोचिंग लीजिए. रिलेशनशिप पे इतने सारे बुक्स है, प्रोग्राम्स है, वीडियोस है, उन्हें देखिए, उन्हें पढ़िए. देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू हु हैव ग्रेट रिलेशनशिप्स. गो एंड स्पीक टू देम. इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन दिस एरिया, राइट. सो कोई भी एरिया हो, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर यू टू ब्रश अप योर स्किल्स, राइट. सो अंडरस्टैंड, मोर द कॉन्फिडेंस, मोर द कॉन्फिडेंस, और दोनों कनेक्टेड है. सो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो सबसे पहले हम अपने कंट्रोल को बढ़ाएंगे, और सेकंड हम अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाएंगे. एंड दैट लीड्स अस टू द फाइनल थिंग फॉर टुडे गाइस, कि ये दोनों करने के लिए कोचिंग बहुत ही काम आती है. आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट बिकॉज मेरी लाइफ में पर्सनली मुझे कोचिंग ने बहुत मदद की है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैं फॉर्मल एजुकेशन में नहीं सीख पाई, मैं और विशाल काफ़ी इसके बारे में जिक्र करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन से हम बहुत सीखे हैं लेकिन की लाइफ स्किल्स नहीं सीख पाए. हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू हैव मोर कॉन्फिडेंस, हाउ टू डील विद फेलियर्स इन लाइफ. ये सारी चीज़ें हैं वो स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखने मिलती हैं, सेल्फ एजुकेशन से ही सीखनी पड़ती है. एंड दैट इज़ वेयर कोचिंग रियली हेल्प्स. There are a lot of people who have been there, who have done that. आप जो राह पे चलना चाहते हो, वो राह पे वो चल चुके हैं और वो वहाँ पे खड़े हैं, रुके. They are waiting for you. Come to them so that they can show you the way. So why not utilize coaching? Get coached. आपको जो एरिया में mastery करनी है, जो एरिया में confidence चाहिए, वो सारे एरिया में देयर आर कोचेस अवेलेबल. और कोचेस का मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल प्रोग्राम या प्रोग्राम ही जाके कीजिए. Coaches are available everywhere. There are people around you waiting to help you, groom you. There are books written by so many people. कोई आदमी बुक कभी लिखता है जब भी उनमें इतने सारे साल का एक्सपीरियंस हो, right? And the book is available for 500 rupees, 1000 rupees, available to you. Go and read the book. So get yourself a coach in terms of programs, चाहे physical programs हो, online programs हो, books हो, audios हो, videos हो, get podcasts हो. That's again an excellent way to get yourself coached. So get coaching. Let someone help you get confident in the area. And then our ultimate aim should be कि हमारा about having money conversations, about wealth or finances, हमारा confidence एक अलग level पे पहुंच जाए. आपको कैसे पता चलेगा? when people around you will notice that she never used to be a part of this thing, but now she's actively participating, she's giving ideas on how to invest and trade and how to increase my wealth, which is a great thing. confidence एक बड़ी magical चीज ये है जो मैंने personally महसूस की है. एक चीज में हम confident हो जाते हैं ना, तो हमें बड़ी excitement होती है to multiply that confidence into other areas of life. For example, I'm very
वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई हेल्थ, ऑन माई फिटनेस, तो वो कॉन्फिडेंस ना मुझे और चीज़ों में कॉन्फिडेंस लाने में बहुत मदद करता है कि मैं हेल्थ और फिटनेस में तो कॉन्फिडेंट हूँ, देन व्हाई कांट आई बी कॉन्फिडेंट हियर? आई विल ट्राई दैट. आई कैन बी कॉन्फिडेंट एट कुकिंग, एट माउंटेन बाइकिंग, whatever it is, it's easy to be confident because you know the secret formula for confidence, right? और ये कोई ऐसा रहस्यमय राज नहीं है. Everybody can do that. So I'm really looking forward to you guys and girls to level up your confidence into the money game. Level up your confidence when it comes to conversations on wealth and finances, and being confident whatever it takes, you can do it. You have the capability. So specifically पैसे और wealth के बारे में बात करेंगे. Think about how does it feel? Really feel it in your body. How does it feel to be confident financially, to be in control of your finances, to be in charge of your finances, and to increase your capabilities when it comes to finances? और उसके लिए आपको coaching लेनी पड़े, उसमें कोई शर्म की बात है. It's not weakness to ask for help, right? So let's get started, guys. Let's focus on building confidence by taking charge and building capabilities, and then see how we go to another level and level up our money game. I wish you joy and abundance in all you do.